जो भी मैरिनेट करते हैं, जो भी टेक्सचर करते हैं, वो उस पानी में करते हैं। तो वो परफॉर्मेंस कैसे आती है कि हमारे फूड में कोई प्रेजर्वेटिव यूज नहीं होता, बेकिंग पाउडर तक हम यूज नहीं करते बेस को हैवी करने के लिए। हमारा फूड 3 साल का बच्चा खा ले, चाहे 100 साल का बुजुर्ग खा ले, उसको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। ये हमारा चैलेंज है। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। Single smells here, Shri Khatu Sham Dilli. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਕੁਲਚਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਮਨ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਕੁਲਚਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਲਚਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋਈਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣ ਆਈਦਾ ਵਾ। It was very great. First time for us to try it, and lot of taste, and was little bit spicy for us, but very tasty and very good. I think the same thing. It's a little spicy for me, but it's very good. Yes, very tasty. Thank you. बहुत अच्छा है। हम जब भी आते हैं तो जरूर इनके पास आते हैं। अभी भी हम आज हमें तीसरा दिन है, हम दूसरी बार आ चुके हैं यहाँ पे। दोस्तों, कहते हैं कि पंजाबियों की बैटरी ना हमेशा चार्ज रहती है, लेकिन इसे चार्ज करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि खाना अच्छा होना चाहिए। आज पंजाब की धरती से सीधे दिल्ली के स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमन खालसा जी। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, जानना चाहेंगे, ऐसे तो मैंने आपके बहुत सारे यूट्यूब ब्लॉगर्स आते हैं और डेली ब्लॉग्स बनाते हैं। आपका जो बनाने का एक तरीका है कुलचे, वो बहुत कम लोग ही इस मेथड को जानते हैं। इस मेथड को बनाने के पीछे क्या कुछ आप इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं? कितना प्यार, कितना अपनापन और स्वाद कितना अच्छा कैसे आप लगाते हैं? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਫੂਡੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ, 2 ਬ੍ਰਦਰ, 1 ਬੇਟੀ, ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਕੁਲਚਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡ ਆਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੀ 60 ਘੰਟੇ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ khalsakulche.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੂਡ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫੋਰਨ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇजिंग ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਇਨਫੋਰमेशन ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲ जाएगी। क्या बात है सर, आपने बातों बातों में पूरे कुलचे का जो है अच्छे से प्रमोशन ही कर दिया स्टूडियो में। उम्मीद करती हूँ जरूर लोग जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके कुलचे को ऑथेंटिक बोलूंगी, ऑथेंटिक टेस्ट, जिसकी वजह से मतलब स्टेट्स के कई सारे लोग जो है कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आपकी दुकान में ना मतलब लोग बड़े चाव से खाते हैं। मैंने देखा है कि आप जिस तरीके से थाली को सजाते हैं उसको देख के ही मतलब आत्मा तृप्त हो जाती है। सर, ये ऑथेंटिक टेस्ट बनाने का जो आइडिया आया है, कुलचों में जो एक्सपेरिमेंट्स आपने किए, जो फ्लेवर्स डाले हैं, वो सब कहाँ से आपने ऑप्ट किया? मेरा अभी इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं है जी। ये मेरे फादर साहब की दो नीति हैं। जी। जब काम सीख रहा था, काम सिखाया, तो उस वक्त मेरे अंदर ये फीड कर दिया था कि जो हमारे घर पे आए, वो दुकान नहीं कहते थे, घर कहते थे, जो भी मेरे घर पे आए जब वो बाहर जाए वो हंसता जाए। एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि जो मैं नहीं खा सकता वो सामने वाले को नहीं खिला। हम इस नीति से अब भी चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि कोई भी फूड ब्लॉगर या फूड वेंडर है वो सिर्फ यहाँ से काम कर ले और देना सीख ले, तो मैं दावा करता हूँ कि आप कोने पे भी काम कर लोगे ना तो कस्टमर आपको ढूंढ के आ जाए। अच्छा, कभी कंपटीशन फील नहीं हुई? क्योंकि देखिए आसपास भी कई सारे कुलचे वाले लगाते होंगे, पंजाब में भी लगाते होंगे, अमृतसर में भी कई सारे आपके कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आज अच्छा ना बने, या एक बार कुछ ऐसा हो जाता है ना कि खाना बनाते बनाते कुछ वो टेस्ट नहीं आ पाता या मिस हो जाता है, तो और जो आने वाले लोग हैं, जो विजिटर्स हैं, वो कहते हैं आज मजा नहीं आया जी सरदार जी, आज अच्छा नहीं बना? कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कभी? ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो? गुरु साहब की कृपा से ऐसा कभी हुआ नहीं जी। क्योंकि जो हमारा रेसिपी फ्लेवर है ना वो फ्रीक्वेंटली जो ना मेंटेन है जी। चाहे जो कोई भी शेफ खड़ा हो जाए, उनको एक रेसिपी दी गई हुई है कि ये रेसिपी ऐसे ही डलेगी। और हमारा एक मिनरल वाटर जो फादर साहब ने दिया हुआ है वो क्या है कि उसकी सारी कलामात है। पानी अमृतसर से आता है। अगर ओडीसी कहीं भी जाते हैं, मैं फॉरेन में गया हूँ, बाय प्रोफेशन में एक्स शेफ हूँ और गुरु साहब की कृपा से काफी अवार्ड भी लेके आया हूँ, दिल्ली से भी लिए और बाहर दुनिया से भी लेके आया हूँ। और वो पानी हम साथ लेके जाते हैं। पानी उसी शहर का होता है, लेकिन वो 1 लीटर पानी 80-100 लीटर में डाइल्यूट होता है। फिर हम जो भी मैरिनेट करते हैं, जो भी टेक्सचर करते हैं, वो उस पानी में करते हैं। तो वो परफॉर्मेंस कैसे आती है कि हमारे फूड में कोई प्रेजर्वेटिव यूज नहीं होता, कोई एग यूज नहीं होता, यहाँ तक कि बेकिंग पाउडर तक हम यूज नहीं करते उसको बेस को हैवी करने के लिए। हमारा फूड 3 साल का बच्चा खा ले, चाहे 100 साल का बुजुर्ग खा ले, उसको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी, उसकी पाइपलाइन बिल्कुल क्लियर हो। ये हमारा चैलेंज है। क्या बात है सर। अब देखिए जैसा कि आपने बोला कि बिल्कुल नेचुरली आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने फूड को डेवलप करवाते हैं और उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज होते। इस पे एक सवाल है मेरा कि घंटों तक आपका कुलचा क्रिस्पी और सॉफ्ट कैसे बना रहता है? क्योंकि एक वीडियो मैंने आपका देखा था जिसमें आप ये खुद बता रहे थे कि विदेशों में भी आपके कुलचे जाते हैं, डिलीवर होते हैं, तो विदेशों में जब जाते हैं तो वो बासीपन या कहीं से कुछ टेस्ट में कुछ गड़बड़ या फिर कहीं कहीं लगता हो कि क्रिस्पीनेस चली गई है, वो चीजें चली गई। गरम गरम तो इंसान खा लेता है, लेकिन ठंडा होने के बाद उसका स्वाद बेस्वाद हो जाता है। उस चीज को कैसे मेंटेन होता है और वो कैसे मतलब विदेशों में जाने के बाद भी उस लेवल की उसमें क्रिस्पीनेस रहती है सर? बिल्कुल। हमारा जो भी फूड जाता है ना, हमारी वेबसाइट पे सारी ऑप्शन है सेमी कुक और रेडी टू ईट की। वो सारा सेमी फूड जाता है। उसके अंदर हमने एक वीडियो दी हुई है कि उस खाने को पैकिंग के बाद आपने घर पे बनाना कैसे है। वो जब आप खाना बनाओगे ना तो जो आप डाइन करते हो, डाइन से भी ज्यादा टेस्ट आप अपने घर पे ले पाओगे। शायद आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया हो कि ये 60 घंटे की गारंटी दे रहे हैं। अभी 10-15 दिन पहले हमारा फीडबैक 82 आवर्स का था जापान से। गेस्ट लेके गया तो उनको खिलाए तो वो वीडियो कॉल में जैसे कुछ एक प्रोफेशनल बना रहा है, अनप्रोफेशनल भी वही प्रेजेंट कर पाया। अच्छा, बहुत सारा देशी घी यूज होता है, मक्खन होता है अमूल वाला, मैंने देखा है। तो मतलब किस तरीके से जो है अगर कोई हार्ट पेशेंट हो या कोई ऐसा बीमार इंसान हो जो नहीं खा सकता इतना ऑयली, उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल आप बनाते हो कि थोड़ा सा अगर डिमांड आ जाती है कि सामने से कि इतना ऑयली नहीं हम कंसीडर कर सकते, हेल्थ वाइज हमें डॉक्टर ने मना किया है, तो उनके लिए क्या कुछ खास है आपके? बिल्कुल। पहली बात तो कुलचा, अगर कुलचे की बात करूं तो वो घी मक्खन के बिना कुलचे का कोई टेस्ट नहीं है। तो है। तो क्या होता है कि
जो अंदर की इंटरनल लेयर्स है ना वो यूज जरूर होता है। हाँ, कस्टमाइज ऐसा होता है कि मैं ड्राई ले लूं, फिर उन्हें ड्राई दे देते हैं। चने हमारे टेक्सचरलेस है, ऑयलीलेस है, उसमें कोई तड़का नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई ऑयल नहीं, सिंपल वे पे। सैलड हमारा जो है वो फ्लेवर्ड है, अपना फ्लेवर है, हमारी रेसिपी है, यूएसपीज है। और कुलचा जो है वो देसी घी मक्खन का होगा ही होगा। हाँ, ऊपर से आप ड्राई ले सकते हो। अच्छा, ये डिजिटली भी आप लोग बहुत ज्यादा आ चुके हैं। फेसबुक पे भी मैं देख रही थी कि आपके 2.9 के फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब चैनल पे भी 337 सब्सक्राइबर्स हैं। आप वीडियोस भी लगातार डालते रहते हैं। फूड मतलब आपकी बेटी ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ा रख रखा है। तो किस तरीके से डिजिटली आप अपने आप को इस बिजनेस को ग्रूम करना चाहते हो? कि हर एक इंसान डिजिटली भी प्रमोट करता है अपने बिजनेस को, तो इसको लेकर आपका क्या नजरिया? आगे फ्यूचर में आप इसको कितना ज्यादा प्रमोट करना चाहेंगे? क्योंकि फेसबुक पेज में जो आपकी ट्रैफिकिंग है, जो आपका एंगेजमेंट है, वो बहुत तगड़ा है सर। तो कैसे आप इसको ज्यादा आगे प्रमोट करेंगे? मैं इसका सारा श्रेय जो है वो अपनी बेटी और मैं अपने ब्रदर अमित गुप्ता को दूंगा। इन्होंने मुझे फोर्स किया कि हमें जो गुरु साहब की बख्शिश है, हमारे पास एक चीज है तो लोगों तक हम क्यों ना पहुंचाएं। बिल्कुल। तो बेटी ने फोर्स किया, बेटे ने फोर्स किया और ब्रदर ने फोर्स किया। वो आईटी के रिवॉल्सिस मतलब कि आईटी टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं जी। तो सारा जितना भी आईटी वो है संभाल रहे हैं, कहाँ क्या करना है, चैनल्स को कैसे करना है, ट्रैफिकिंग कहाँ करनी है, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो सलाह देने वाले और आज दुनिया तक कुलचा पहुंचाने वाले मेरी बेटी और अमित गुप्ता, ये 2 पर्सन हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मुझे मोटिवेट किया कि इस काम को हमें फ्लो में लाना चाहिए। और आज हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आज हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल जो हैं वो ओपन होने लगे जी। और फ्रेंचाइजी दुनिया के फ्रेंचाइजी मॉडल में मैंने एक अजूबा ये किया है कि लोगों को कॉपी बनाना शुरू कर दिया। जबकि लोग टीम देते हैं, लेकिन जिसने फ्रेंचाइजी लेनी मैं उनको ही कॉपी बना के भेजता हूँ। क्या बात है? कि वो कहीं गिरे ना, वो सब कुछ सीख के जाएं। और उनको मेरी पायलट किचन पे, रेस्टोरेंट शॉप पे आना पड़ेगा, मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मुझे मेहनती लोग और पैशनेट लोग चाहिए, पैसे लगाने वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। जिनको शौक है खिलाने का वो मेरे पास आ जाएं। उन्होंने कभी चाय भी मिलाई, मैं उनको 70% जेरोक्स बना के भेज दूंगा। ये खालसे की एक प्रॉमिसिंगली। आपको नहीं लगता सर इससे कंपटीशन मार्केट में और भी तगड़ा हो जाएगा? और आने वाले जो यंगस्टर्स हैं जो आपको कॉपी करना चाहते हैं, जो जिनको आप सिखा रहे हैं अपना गुण, कहते हैं ना किसी को गुण नहीं बताना चाहिए अपना, क्योंकि वो गुण आपका अपना पर्सनल होता है, वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। वो आप पुश्तैनी गुण आगे बढ़ा रहे हैं अपना। तो आपको नहीं लगता कंपटीशन इतना जनरेट हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा आपको ओवरटेक कर ले? एक जेलस फैक्टर या एक कंपटीशन फैक्टर आपके अंदर कहीं कुछ ऐसा हो? पहली बात तो ये कि जो मुझे गुरु साहब ने बख्शिश दी है, मेरी अपनी इच्छा है मैं बांट जाऊं, लोगों तक बांट जाऊं। अगर वो कोई ये सोच लेके चलता है कि मैं इनसे सीख के अपना काम कर लूं, तो वो नहीं कर सकता। बेस रेसिपी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मिनरल वाटर जो हमारा बनाया, उस पानी के बिना आपका खाना हमारा शेफ भी नहीं बना सकता। हमारा शेफ भी हमारी रेसिपी के बिना आपको फ्लेवर नहीं दे पाएगा। उसको विधि पता है, ठीक है, रूटीन पता है कि इस चीज में इतनी चीज डालनी है, लेकिन उस चीज में चीज क्या है वो उसको बिल्कुल नहीं पता। ये यूएसपी हमारे परिवार के अंदर ही, वो ओपन, वो हमारे सीक्रेट्स हैं। वो हमारा कारीगर भी होगा, वो भी नहीं वो चीज परफॉर्म कर पाएगा जितनी देर तक हमारा सामान ही लेके आएगा। ये हमारा सीक्रेट है। क्योंकि आप एक शेफ हैं और शेफ का काम होता है एक डिश पे फोकस ना करके कई सारे डिशेस हैं। अब आपको पूरी दुनिया आई एम श्योर ये तो जानती है कि आप कुलचा बहुत बनाने पे कुलचा मास्टरमाइंड है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी रेसिपीज आप ऐसी पंजाबी वाली बना सकते हैं जो अभी तक जो है लाइमलाइट में नहीं आई है, स्पॉटलाइट में नहीं आई, लोगों को पता ही नहीं है कि अमन जी ये रेसिपीज में भी बहुत माहिर है सर? पहली बात तो दुनिया में ना आज 200 से ऊपर देश हैं जी। वो 200 देशों में से 150 देश ऐसे हैं जो पंजाबी खाने को पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन पंजाबी खाने का कहीं नाम तक नहीं है, किसी दुनिया के मेन्यू में नाम तक नहीं है। तो पहले मेरा टीचा है कि जो भी दुनिया के वर्ल्ड वाइड मेन्यू बनते हैं उसमें पंजाबी कुजीन मेन्यू फीड कर रहे हैं, जबकि इंडियन कुजीन में सारा कुछ दिया हुआ है। तो आने वाले समय में जहां भी हमारा पंजाबी कुजीन का कुलचे का फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन होगा, 6 महीने बाद पंजाबी कुजीन शुरू होगी। सिंपल खाना होगा, होममेड खाना होगा, उसमें सबसे पेटेंट हमारी जो सब्जी होगी वो आलू बड़ी की सब्जी होगी, जो इंडिया में क्या कहीं भी मतलब पंजाब में भी नहीं मिलती।
कहीं कस्टमाइज भी नहीं है। तो हम एक पैटर्न बनाएंगे कि आलू बड़ी की सब्जी को हमने पैटर्न लेके चलना है, ये हमारी स्पेशलिटी भी होगी। प्लस जो लोग बाहर के खाने से डरते हैं कि हैवी होता है, भारीपन होता है, जहाँ मुझे पछता नहीं 2 दिन खा, वो सिंपल वे पे जैसे घर खाना बनाते हैं, हम उन्हें वो घर वाला खाना प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अब ये सालों पुराना बिजनेस है, तो एक सवाल ये भी बनता है कि कभी आपने सोचा है कि अलग अलग शहरों में इसके आउटलेट्स होने चाहिए? लोग तो जा ही रहे हैं, कोरियर तो हो ही रहा है फूड, लेकिन इन केस अगर कोई इंसान जाके उस आउटलेट पे खाना चाहे कुलचे को गरम गरम एकदम ताजा बना हुआ, तो वो फिर कैसे एफर्ट्स करेगा? क्योंकि आउटलेट्स शायद मेरे ख्याल से आपके हैं नहीं है, मुझे अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। 3 साल से सोच पे काम हो रहा है जी। आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, 3-3.5 साल से हमारा फूड आप तक पहुंच रहा है। पहला हमारा स्ट्रेटजी क्या बनी कि आप तक हम सिर्फ अपना फ्लेवर पहुंचाएं, शहर तक लोगों को पता चल जाए कि खालसा कुलचे वाला ये सर्विस भी देता है, ये फूड भी देता है और फूड का व्यू भी ऐसा है। ये हमने सारी लोगों के व्यूज इकट्ठे करके हमने अभी रिसेंटली जैन से हमारी फ्रेंचाइजी ओपन शुरू हो जाएगी, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, लुधियाना और अमृतसर में। पहले चाहे वो दुनिया में खुले, मुझे सिर्फ मेरे जैसे लोग चाहिए जो मुझसे 2 कदम आगे भागने वाले हों और मुझे सलाह देने वाले हों। मैं ना तो सीएमडी हूँ ना सीईओ, मैं सिर्फ एक फ्रेंडली वर्क पे काम करूंगा, जो मुझे अपना आप दे देगा मैं मुझे सब कुछ सौंप दूंगा। ठीक है सर, अब देखिए फ्रेंचाइजी की बात तो हो गई है, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से अमृतसर में आपका जो आउटलेट है जिसमें आप कुलचे प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही प्राइस पर एक कहते हैं ना पॉकेट फ्रेंडली प्राइस, वैसे ही प्राइस पर यहाँ पे मिल पाएगा या कुछ प्राइसेस में ऊपर नीचे होगा? देखो ऊपर नीचे इसलिए होता है कि जो हमारे फिक्स एक्सपेंस होते हैं ना, पहले उसको ध्यान में दिया जाता है कि एक बिल्डिंग मिलती है 10,000 किराए में, एक बिल्डिंग मिलती है लाख रुपए किराए में, उसको पहले मेंटेन करके फिर हमारी आईटी टीम, टेक टीम, सुपरवाइजर टीम, मैनेजमेंट टीम ये सारा डिसाइड करती है कि यहाँ रेट क्या होना चाहिए और हमारी नीति क्या है काम करने की, कि अकॉर्डिंग टू रेट, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, ये 3 चीजें जहां भी हमारा आउटलेट खुलेगा, तीनों चीजें एक छत के नीचे मिलेंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, हंग्री एकल क्या है? आपके YouTube ब्लॉग में हमने देखा था कि आपके बच्चे इसको प्रमोट कर रहे थे, Instagram पर और Facebook पर भी एक पेज बना हुआ है, तो वी जस्ट वांट टू नो, क्योंकि खालसा कुलचे वालों का तो YouTube है, वो तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मशहूर है, लेकिन इस छोटी सी चीज के बारे में बताइए कि हंग्री एकम है क्या? हंग्री एकम एक्चुअली में उनको पता चला कि अमृतसर में ऐसे खालसा कुलचे वाले हैं, वो लुधियाना से दोनों बच्चे, तो वो जब इंटरव्यू लेने आई वो बेटी, तो वो खुद 9th में ज्वाइन थी, जी बहुत 9th स्टैंडर्ड में थी, तो उसने जब इंटरव्यू, मैंने खुद इंटरव्यू ली कि तुझे शौक क्या है, तो उसका एक ही जवाब था, मुझे खाने का शौक है और खिलाने का शौक है, क्योंकि मैंने उसको देखा कि इतनी छोटी उम्र में वो ब्लॉगर बनी हुई है, तो आज भी उसका पेज चल रहा है, तो सिर्फ वो नाम सुन के मेरी इंटरव्यू लेने आई, तो तब मैंने इंटरव्यू दी कि हमारा फूड जो है सिर्फ इसी चीज पे चल रहा है कि हम शौक से खिलाना जानते हैं, जो मेरे घर पे आए मैं उसको खुश करके कैसे बाहर भेजना है, बस इसी चीज पे स्ट्रगल करते हैं। फूड में हमारे ताकत है या नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारी टीम के अंदर इतनी ताकत है कि कोई नाराज भी आए ना तो उसको भी हम खुश करके भेजेंगे। क्या बात है, कहते हैं ना कि पेट खुशी होने का रास्ता शायद पेट से होकर कहीं दिमाग पे गुजरता है, शायद इस फिनोमेना को आपने बहुत अच्छे से मदद करके उसको जो है प्लॉट करा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, खाना खजाना में वक्त अपना इतना देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि अमन खालसा जी का ये कॉन्सेप्ट और ये जो डिशेस है, अगर आप इसको जो है इससे अछूते रह गए हो और आप अमृतसर गए हो और आपने ना खाया हो तो इस बार जरूर ट्राई करिएगा, जरूर जाइएगा। और सर इसमें प्यार के साथ साथ एक फ्लेवर्स का भी ऐड ऑन करते हैं, तो जरूर जाइएगा और अपने कमेंट्स जो है हमें जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहे खाना खजाना। मैं आपको बहुत प्यार से तहे दिल से इनवाइट करता हूं, आप अमृतसर आओ, मैं और मेरी टीम आपको तहे दिल से आपका स्वागत करेगी, आपको घर जैसा स्वाद देगी, और जो खाना आप खाओगे ना वो खाना तो लेके जाओगे आप, हमें भी अपने साथ ही लेके जाओगे, ये हमारा चैलेंज। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकता राम राज्य काहू नवे। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली।